Welcome to the No Filter Cricket Show. I have with me my old friend C.S. Luthra, who's not only an expert in cricket, but has certain definitive viewpoints, and it always makes for a great chat with him. Welcome to the show, CS. Thank you, Arun. So, for the viewers, like our montage said, that we are going to talk today about Bazball. Now, first of all, what is Bazball? Bazball came from the name of Brendan McCullum, the former New Zealand captain, a very, very explosive batsman, and considered among the contemporary batters an absolute great. Quite a successful coach at a particular level till at the T20 level, till he got a chance to become coach of England, and since then this phrase has been introduced called Bazball, which represents fearless cricket, aggressive cricket, and like quite a few experts said that he has inculcated this sense among the England players that don't run away from danger. If you see danger coming towards you, run towards it. Of course, limited to a sports field. Why the name Bazball? It is Brendan McCullum's nickname Baz, and hence that phrase Bazball. So first of all, while it has really worked for England to a great extent so far, and after a horrific time that they had, losing match after match under Chris Silverwood and under Joe Root as skipper, so the new director of ECB, Rob Keys, came in May 2022, and then brought in these two gentlemen, and ever since then, this phrase Bazball has now been discussed threadbare. It's become part of the modern game. But here today, our topic is not so much about what England has done with Bazball, but what India can do with Bazball. Does India want to do anything with Bazball? And already there are critics of Bazball in India. So CS, let's begin first of all with your reaction on Bazball, and what do you think about it? Well, this is one of the approaches we have seen. I mean, if you start with 1983 World Cup victory, that was a different approach under Kapil Dev, if you remember. He wanted aggressive cricket, not just like the Bishan Singh Bedi style or Sunil Gavaskar style. So we never called it cap ball or something, like that. That's the approach. That was the beginning of one-day cricket, and obviously that made cricket so popular in India. But right now, what is happening is in 2008, when we started with IPL, Bazball actually started, around that time. McCullum came almost that time. He was not a initial hit, but yes, later on he did so well in IPL. But the point is, do you only want to see the IPL kind of cricket, 2020 kind of cricket? I'm not a great advocate of this kind of theory. For me, I think cricket means, the test cricket means approach where you leave the ball, which we have, the nuance that we have forgotten, in recent times. We are at a stage when we are trying to, to play a mix of T20, one day and test cricket. And that's where the problem is. Our batsmen, or entire world, we can't play spin, we can't play complete, pace on the pacey tracks. Look at what has happened on Australian wickets. They've slowed it down because our pacers are better than their pacers, or our batsmen are more equipped than their batsmen. So the art of playing pace or art of playing spin, we have forgotten. And now we are getting into this new debate. And last night was a great example of how beautifully New Zealand won against, Sri Lanka. And it was a last ball, match. Ball went till the very last ball. And they were chasing what? In the last day, 220, 230 runs in the last day. Did they play the Bazball? No. If they would have tried that, they would have lost probably, initially, because the ball was moving. The approach has to be like, Arup, agar aap dekhen, approach has to be like, aapki conditions kya hai? In the windy condition, if you start playing Bazball, kya hota tha? And during McCullum time, if you remember, कोई great test victories नहीं हुई. He was a good one-day player or a T20 player later on. लेकिन ऐसा कोई proven track record उनका नहीं था कि जिसमें ये कह सके कि मैंने इसको innovation दिया है. It's a different time, and probably he has come at a time जब आपका जो पुराने कैप्टन थे, उन्होंने छोड़ा और न्यू कैप्टन उनके आए हैं, जो रूट ने छोड़ा.
तो जो रूट का अप्रोच वाज ए डिफरेंट. जो रूट इज वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स. जो रूट, केन विलियमसन. मैं तो हमेशा दोनों को बहुत अच्छा मानता हूँ और बहुत ऊपर मानता हूँ. विराट कोहली कम्स इन ए डिफरेंट फॉर्म, यू नो, डिफरेंट उनका क्लास है, नॉट लाइक देम. आपको रोक के ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि जो कपिल देव ने किया वो एक अल्ट्रा अग्रेशन अपने जमाने का था और एक कभी भी उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, तो क्या ये एक मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्सरसाइज है? बैज के नाम पे वो बैज बॉल बन गया। और दूसरी चीज है कि बेन स्टोक्स एक ऐसा वो भी एक बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, वन ऑफ द पॉसिबली द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन कंटेम्प्रेरी क्रिकेट, लेकिन उससे भी ज्यादा एक खिलाड़ी है जिसमें एक बहुत ही इच्छा है कि वो हर मैच जीते, और ये एक कॉम्बिनेशन है जो बढ़िया काम कर रहा है और ये एक मार्केटिंग गिमिक है, एक्सरसाइज है। देखिए, जस्ट लाइक आर पॉलिटिकल, यू नो, पार्टीज जो एक वन लाइनर्स देते रहते हैं, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, और जो वो हिट हो जाता है, इलेक्शन मोड में आ जाते हैं. सेम मुझे लगता है कि ये इट इज नॉट अबाउट, यू नो, अ टीम. इट इज मोर अबाउट टू इंडिविजुअल्स. मैकुलम इकट्ठे हुए किसके साथ? कि बेन स्टोक्स के साथ. दोनों एग्रेसिव प्लेयर्स, दोनों का माइंडसेट मिलता है, और दोनों एक डिफरेंट क्रिकेट खिलाना चाहते हैं. तो आई थिंक ये सब उससे डिराइव किया गया है कि आप बेसबॉल खेलिए, आप थोड़ा एग्रेसिव खेलिए. एंड वन ऑफ दोज मैचेस जिसमें इन्होंने 500 रन तक बना दिए एक दिन में, उससे वो हिट हो गए. बट अगर ये इतना अच्छा क्रिकेट और इतना एग्रेसिव खेल रहे थे, तो आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी तो आगे होते ना. नहीं हुआ ऐसा. सो फाइनली आपका जो नेट रिजल्ट है, अगर आप सिर्फ ऑन प्योरली इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की बात करें, तो उसमें भी आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सिर्फ T20 ही खेलना है इन द 5 days, आपकी वही अप्रोच रहेगी, तो फिर लोग क्यों खेलेंगे? आपकी जो रेड चेरी बॉल जो जो क्रिकेट है, वो तो वैसे ही खत्म हो रही है. आपने खत्म कर दिया है. अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ना हो, जिसमें 6 कंट्रीज के अगेंस्ट 3-3 मैच आपको आपस में खेलने हैं, होम एंड अवे, तो आपकी क्रिकेट तो वैसे ही खत्म हो गई थी. बर्बाद कर गए थे ललित मोदी जी. खुद तो लंदन में यॉट पे घूमते हैं, पर आपकी क्रिकेट को बर्बाद कर गए हैं. द पॉइंट इज कि आपको डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट फॉर्मेट्स की गेम खेलनी है. और उसकी ब्यूटी क्या है? चेतेश्वर पुजारा का तो रोल ही खत्म हो जाएगा. ये आपके जो एक कोच हैं, जिनको कितने कोच हैं मुझे नहीं मालूम, राहुल द्रविड़ बहुत ग्रेट प्लेयर थे. कोचिंग क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आता. क्या अप्रोच है, आज तक किसी को समझ नहीं आया. तो ये जो इनका तो गेम ही खत्म हो जाएगा. अगर राहुल द्रविड़ के टाइम में ये अप्रोच होती, तो वो तो शायद एक टेस्ट और 4 वनडे के प्लेयर रह जाते. तो ये पॉइंट ये है कि आप किस क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, आपकी अप्रोच कैसी होनी आप चाहिए. सही कह रहे हैं मेरा ये मानना है, क्रिकेट रूप, कि अगर आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी है, तो आप एक न्यूट्रल अच्छी पिचेस दीजिए. आपको स्पिनिंग ट्रैक भी देना है, तो सेकंड थर्ड डे ऑनवर्ड स्पिन हो. ये फिरोशा कोटला, ये इंदौर का विकेट देकर के आप अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते. फर्स्ट बॉल ऑफ द टेस्ट मैच आपका स्पिन हो रहा है, तो फिर तो क्रिकेट का तो बाजा बज गया ना. उसके बाद तो फिर आप बेसबॉल खेलिए, या कल को कोई T10 आ जाएगा, T5, या कभी हो सकता है टॉस टॉस पे ही खेलना शुरू कर देंगे, जुआ खेलना शुरू कर देंगे. तो यस, मैं क्रिकेट कहाँ पर आपकी मैटर करती है? का ध्यान कुछ आंकड़ों की तरफ ले जाता हूं, बिकॉज दे से स्टैटिस्टिक्स नेवर लाई एंड पॉसिबली दे डोंट. सो लेट्स लुक एट सम ऑफ द पॉजिटिव रिकॉर्ड्स ऑफ बेसबॉल, बिकॉज सीएस का पॉइंट ऑफ व्यू अब आप जो सुन रहे हैं, साफ जाहिर है that he is a bit critical about baseball and also that it could be a little gimmicky. But anyway, we'll come back to that. Let's look at some of the stats. Now, after beating New Zealand 3-0 in a test match series, England beat India also in the single test series, which was rescheduled. Now, the important point to remember is in all 4 matches, which is against New Zealand and India, England won, chasing a total in the 4th innings. यानी सबसे ज्यादा प्रेशर उन पे रहा होगा किसी इनिंग्स, किसी टोटल को चेस करते हुए, और वो जीते. While they chased 277 with ease in the first match against New Zealand, England put on a show in the second test to chase down 299 in 50 overs. And in the third match, Ben Stokes led team chased 296. और इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने कमाली कर दिया, क्योंकि उन्होंने वो जो रीशेड्यूल टेस्ट मैच था, आपको याद होगा, इंडिया ने एक अच्छा टोटल सेट किया था 378 का, जो बड़े आसानी से इंग्लैंड ने चेस डाउन किया. और जिसे कहते हैं कि जख्म पे नमक छिड़कना, बेन स्टोक्स का कमेंट था, इवन इफ इट वाज अ 450 400 प्लस टोटल, वी वुड हैव स्टिल वन एंड गॉन फॉर इट. सो सीएस, व्हेन यू लुक एट सम ऑफ दीस स्टैट्स, they have been on a winning spree. They have been able to turn the fortunes of England cricket.
So would you give them some credit? Absolutely. There is no doubt that while chasing a fourth inning target has never been an easy. We have seen it in India. After Virendra Sehwag came, I still remember that game in Chennai against England when we were chasing about 280 or some match score, and just on the one day before the final day when he was playing Virendra Sehwag, he scored some 80 odd runs or 79 or 80 runs, within no time. And he set that target, and eventually we won against them. So that was the kind of cricket or approach we always wanted from these kind of players. But again, individuals. If you ask Joe Root to play the same game, he will eventually, he'll also start failing after a point. Joe Root played even in the last game, if you remember, England match. Joe Root played a wonderful innings. He took almost double the balls, while scoring his century. But what happened to the other players? They were taking, head on against the opponent bowlers. So that's the kind of approach you have to. You cannot count everybody in the same, in the same basket. You can't put everybody there. You have to pick and choose players who are going to play aggressive. In India, if you look at today's scenario, your Jadeja is one player who always takes on the opponents, whether it's bowling or whether it's batting. His approach is very aggressive. For So is that Rishabh. matter, you can't. And Rishabh Pant, unfortunately, he's not there in the team. But if you start asking Chiteshwar Pujara, he's a classy test player that go and start banging, or every ball you have to score single or double. His knee will give up. He has a chronic problem of knee. His knee will give up. उसके आपके वो जो players है जो classic वो खत्म हो जाएंगे सारे ऋषभ पंत नहीं आप भरकर जीत सकते ऋषभ पंत is critical when you are chasing something like if you remember that Brisbane game when we won after 32 years or so. I mean, Australia lost after 32 years. So that's the kind of situation you need. These kind of players where they come in, they hit, and they create that platform. लेकिन अगर आप सबको ये कहेंगे अश्विन को भी ये कहेंगे अश्विन या फॉर दैट मैटर अक्षर पटेल पीछे अच्छा खेल रहे हैं उनको बोलो जी जाइए और हर बॉल पे सिंगल टैप करके ये थोड़ी देर में थक जाएंगे मर जाएंगे ये अप्रोच मैंने कहा ना ये दो इंडिविजुअल्स मिले हैं बेसबॉल इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेन स्टोक्स एंड मैक्यूलम उनकी लिए लिटरल जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम है तो अगर ऐसी ही अप्रोच जो कहते हैं कभी इंडिया में भी हो जैसे महेंद्र सिंह धोनी वाज ए ग्रेट फिनिशर लेकिन अगर आप उसको महेंद्र सिंह धोनी के टाइम में भी जो हम चेस करने जाते थे अगर हम सेम अप्रोच के साथ चलते तो हमारे कई प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते कई प्लेयर्स खत्म हो जाते हमारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जितने भी टेस्ट क्रिकेटर हैं उनका अप्रोच बड़ा मिक्स होता है या पिच सेंट्रिक भी होता है आपको पिच पे देखना पड़ता है द ग्रेट जो अगर आप हिटर कहें आज के टाइम के वो रोहित शर्मा है कप्तान है लेकिन उनकी बैटिंग का अप्रोच T20 और उसमें बहुत डिफरेंट होता है कितना रुक करके यहाँ पर खेलते हैं उनकी वो अप्रोच नहीं होती बिकॉज ही ऑल्सो अंडरस्टैंड बॉल टर्न हो रही है आप खेल के दिखाओ ना सेम बेसबॉल वाला अगर आप फिरोशा कोटला मिलाइए और उनको बोलिए पहले बॉल से टर्न हो रहा अब खेलिए बेसबॉल सब धराशायी हो जाएंगे एक दिन में 80 रन पे एक टीम निकल जाती है दूसरे दिन और तीसरे दिन तक मैच खत्म लंच तक मीन दैट्स द काइंड यू यस यहाँ पे दो रवैया हैं वो और उन दोनों रवैयों पे मैं आना चाहता हूँ Point one, that you find, when I say you, it is a large part of the cricketing fraternity might dislike baseball, and they may say they may have their own reasons, and they may say that this is not the way to go about Test cricket, and in the long run it will never work out. The second part is that when something is working so well for the Brits, can India learn something from it? Now, here, before you get into the discussion, Sunil Gavaskar, he was asked at a press conference post by the media, rather, by a fan on one of the TV shows that what do you think of baseball? And he says, I don't know what it is. So, उन्होंने वहीं पे उसकी कहानी खत्म कर दी और फिर Ashwin was also once asked about baseball. So I quote, he said, we now have a concept called baseball. England is playing high-paced test match cricket. They want to play a certain style of cricket, but in certain types of cricket,
When you try and attack every ball, you will falter. There are both advantages and disadvantages to this approach. Some will ask, instead of defending and getting all out for 100, I'll slog it out and get out all out for 140. We will only know when the game pans out that the approach works or not. Sometimes on the wicket, conditions need to be respected. If you respect the pitch and play accordingly, the pitch will also respect you. If you respect the pitch, it will pay you dividends. So it is very clear that both Mr. Gavaskar, who was absolutely dismissive, but Ashwin, some of the points that you were yourself pointing out, he said that it cannot be applicable under all conditions. But when it comes to England, they seem to have adopted this for different conditions and to use it most of the time. I think what England has done in last 4 5 years, after failing in 2015 World Cup and later on, उनका अप्रोच में डिफरेंस आया. दे मेड द सेपरेट टीम्स, सेपरेट कैप्टन्स. T20 उनका अप्रोच ही डिफरेंट हो गया. अगर आप देखें, वो इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, वो बहुत पहले इंग्लैंड में ही हुआ था, और बहुत उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा अप्रोच वो चेंज हुआ था. सो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने 3 साल के अंदर आपको वनडे भी और T20 भी वर्ल्ड कप जीत करके दिखा दिया. दैट टाइम मैकुलम वाज नॉट देयर. सो दोनों को मिक्सअप मत कीजिए. ये मत बोलिए कि मैकुलम के आने से अप्रोच चेंज हुई है. मैं कह रहा हूँ ये दो इंडिविजुअल्स हैं, उसको टेस्ट क्रिकेट में ला रहे हैं अप्रोच को, बिकॉज दो इंडिविजुअल की सोच मिलती है. तो अब वो दो इंडिविजुअल्स उस वक्त तो नहीं थे जब वो T20 वर्ल्ड कप जीते. उस टाइम पे कोई और थे, उनके एन मॉर्गन कप्तान थे. तो वो जो अप्रोच थी बहुत पहले से उन्होंने शिफ्ट करनी शुरू की, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपनी अप्रोच जो टिपिकल इंग्लिश काउंटी क्रिकेट अप्रोच थी उसको बदलना होगा. एंड दे डिड इट सक्सेसफुली. दे डिड इट. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन द टेस्ट क्रिकेट. सो मैं भी यही कह रहा हूं आपको कि अगर ये इतनी सक्सेसफुल होते तो अब ये फाइनल के लिए क्वालिफाई करते. वो नहीं किए फाइनल के लिए. क्वालिफाई किए हैं हम और ऑस्ट्रेलिया. दोनों क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? मिक्स क्रिकेट खेल रहे हैं. और मिक्स क्रिकेट में शानदार रिजल्ट उनको मिल रहे हैं. अच्छा क्रिकेट वो खेल पा रहे हैं. दो अगेन मैं जो विकेट्स का स्तर है उसका बहुत ही खराब है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा आईसीसी को भी. लेकिन ओवरऑल क्रिकेट तो हम अच्छा खेल रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे. लेकिन यस, मैं कह रहा हूं उनकी अप्रोच चेंज हुई, विच इज फाइन. आपके दो इंडिविजुअल्स हैं, उनका हुआ. लेकिन व्हाट विल हैपन, कल को ये कप्तान जाएंगे या वो जाएगा, तो जो बाकी की जो पनीरी होगी, जो बाकी की जो पीछे के प्लेयर्स होंगे, जिनका एक स्टाइल डेवलप होता जाएगा. क्योंकि एक सिग्नल आपका टेस्ट क्रिकेट में पीछे जो प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ में उनको जाएगा कि आपको हर बॉल पे रन बनाना है. जब आप हर बॉल पे बनाना शुरू कर दोगे ना, देन द प्रॉब्लम इज, जो हम लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहे थे, द आर्ट ऑफ लिविंग बॉल. अगर आप 70 बॉल को वेल लेफ्ट करके बाकी 70 पर आप 60 रन बनाते, दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट. क्योंकि अगर आप हर बॉल खेलना शुरू करोगे तो वही होगा, 70 पर आप ऑल आउट, 80 पर ऑल आउट, 3 दिन में मैच खत्म. टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी खत्म हो जाएगी. अगर आपको हर रोज एक ही तरह की चाय पीनी है, कोई चेंज ही नहीं लाना, तो फिर तो ठीक है, आपको करते रहिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है. आपको जब 8 साल 10 साल पहले, 15 साल पहले सॉरी, जब T20 की बात थी तो हर व्यक्ति ने कहा था क्रिकेट खराब होगी. आप नहीं माने, कर दी खराब. अब पॉइंट है, उस खराब में आप अच्छा क्रिकेट भी देख रहे हो. अप्रोच चेंज हो रही है. 4 दिन में मैचेस चल रहे हैं और मैक्सिमम मैचेस 4 दिन में खत्म हो रहे हैं. इंडिया सब कॉन्टिनेंट को छोड़ दीजिए. तो उससे रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए. आपकी अप्रोच अच्छी होगी. आप मैच को चेस करने जाते, 370 रन अगर आपको लास्ट डे हो, आप चेस करने जाते, विच इज गुड थिंग इन टेस्ट क्रिकेट. मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ. लेकिन यू कैन नॉट मिक्स ईच एंड एवरीथिंग और उसके बाद बोलिए जी बेसबॉल ही खेलेंगे. तो बेसबॉल तो मैंने कहा ना, ये आज एक वक्त है जिसमें आप कह रहे 3 मैचेस आप और न्यूजीलैंड में जीत गए, हमारे अगेंस्ट जीतते. हम अच्छा क्रिकेट नहीं वहां जाकर के खेले थे इंग्लैंड में, अगर आपको ध्यान हो. हम खराब क्रिकेट खेले थे, इसलिए वो जीतते हैं. अगर हमारे बॉलर्स वहां पर टोटली फिट होते और अगर हमारे वही पेस अटैक वहां पर जाता, इंजरी ना होती, तो हो सकता है उनसे वो चीज नहीं होता. So it was Okay, our deficiency. let's take a slightly diverse look, because this is a very interesting topic on Bazball. It has its critics and it has its strong and very severe critics. Yet at the same time, there are flaws in that criticism, and I'll through research point out 1 or 2 such examples. Then CS will obviously come in. So now the critics of Bazball say that it can only work against weak bowling attacks in England, and they are very clear about it, that if the bowling attack is not good enough in England, that is when Bazball succeeds. But
New Zealand and South Africa were two teams against whom England won a 3-match series at home, and they are by no means a weak bowling attack, is the counter. Now, there is a second counter. In Rawalpindi, अभी हाल में जब इंग्लैंड वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने गया था, सीरीज भी जीता उन्होंने, तो in Rawalpindi, when the English batters scored more than 500 runs in a single day on the first day, the pitch took all the credit. They all said that it is the Pata cricket, it's like a road strip, and they totally attacked it. But in the second innings, on that same pitch, the English bowlers bowled Pakistan out and won the match because the target was set in such a manner that it seemed achievable, and hence the other team did not go into a defensive shell. Now, this is in cricketing terms, in sporting terms, a very, very interesting theory to think about. That you give the opposition the semblance of a chance, and then you attack. Now, in my mind's eye, it was a stage set for the great Shane Warne to have gone in for the attack with the complement of fast bowlers like Glenn McGrath and the other people. But now coming back to the present, this Pakistan example is a brilliant example. So CS, how do you react? Well, Pakistani wicket was a complete pata. I saw some of the clips there and during the live telecast also. But the point is how good you are going to rate the Pakistani team. They have been playing very less of cricket. One, they had very little exposure to the international crickets, and they have been playing very less cricket on the outside continent crickets. They are playing most of the games in Dubai, now in Pakistan, obviously, when it has resumed. So their exposure, that's lack of exposure. They have some beautiful, players, or the batters. Their captain is one of the best players in the world. But the point is, when you set up this kind of target in the second innings, obviously, like yesterday's game, New Zealand Sri Lanka game, if you are chasing something like 350 runs, 250 runs, obviously you are going to go for that chase. Whether you lose or win doesn't matter. So the beauty or the ideal situation for any test cricket is that you play by sessions. You play what kind of wicket you have according to your surface, and also the availability of the players in that particular game. If you have all your team, all your first class team, obviously if the first playing 11, then obviously the approach is different. If you have two players injured, your two main bowlers are absent from the game, then obviously your approach changes. So a coach has to also, in a way, जो tactically जो होता है, उसको इस तरह से गेम बनानी पड़ेगी कि आप उस मैच, उस particular match conditions, like overcast condition, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं. Whatever we are talking about, जब इंडिया गया था, later part of the summer था, जब विकेट्स ड्राई हो जाती है, जब रन बनते हैं वहां पर. आप अर्ली पार्ट में जाइए ना समर में, तब इंग्लैंड में जाइए और बोलिए कि आप 200 रन चेज करेंगे, कैसे मुश्किल होता है. बिकॉज बॉल स्विंग होती है, बॉल का एक डिफरेंट कैरेक्टर विकेट का होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. और प्लस अब मैंने जब कहा ना कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, आप हाफ बेक्ड विकेट्स देनी शुरू कर दिया. आप ऑस्ट्रेलिया में वहां फास्ट नहीं देंगे, इंग्लैंड में पूरी कंडीशंस, उनका जो मॉइस्चर होता है उस तरह को विकेट्स नहीं देंगे. इंडिया में आप जो स्पिन वाली जो विकेट्स होती है वो नहीं देंगे. मीन स्पिन वाली नहीं, सॉरी, जो विकेट जो स्पिन सेकंड थर्ड डे ऑनवर्ड्स होता है वो नहीं देंगे. तो फाइनली आप क्रिकेट में क्या परोस रहे हैं जो देखने वाले हैं? या तो आप ऐसा कर दीजिए अहमदाबाद की तरह कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है 1 लाख लोगों को ला करके, आप उसमें से 80,000 अपने लोगों से खरीदवा दीजिए, 10,000 टिकट भी ना बिके, ठीक है. या तो आप ऐसे रिकॉर्ड बनाइए कि सब बोल दीजिए कॉर्पोरेट खरीद लेंगे. जैसे आईपीएल की टिकट है, मोर देन 80% टिकट तो फ्री में होती है, कॉर्पोरेट्स खरीदते हैं, उसको अपने लोगों को देते हैं, वो जाकर के वहां पर क्लैपिंग करते हैं क्योंकि उन्हें खाने पीने को वहां पर फ्री में मिलता है. आप क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे. देखिए, मैं बहुत हार्डकोर, आई हैव बीन ए स्पोर्ट्समैन, आई हैव बीन ए कोच. मेरा एक अप्रोच इज वेरी डिफरेंट. मुझे लगता है कि गेम को बचाना और गेम को परोसना आने वाली जनरेशंस को इस तरह से कि वो इस पे अट्रैक्ट हो, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एज ए पेरेंट ऑफ द game or a great fan of a game, rather than कि आप उसको परोस करके. ये भी कहा जा रहा है जहां तक इंडिया की बात है कि बैसबॉल इंग्लैंड में इसलिए सक्सीड हो रहा है क्योंकि वहां पे इंडिविजुअल्स को अहमियत कम दी जाती है, और इन कंपैरिजन इंडिया में जो हो रहा है वो आप जानते ही, हम सब जानते हैं. यहाँ तो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, डेमी गॉड्स हैं.
साइड जीते ना जीते, अगर कोई शतक किसी ने मार दिया और अब उसका नाम ज्यादा होता है और ये दुनिया भर की चीजें कही जाती हैं। लेकिन मैं ये जानना आपसे चाहता हूँ कि जहां तक मेरे दिमाग में है कि बेसबॉल को सक्सीड करने के लिए अगर इंडिया को ये अडॉप्ट करना है तो ये इंडिविजुअलिज्म कम करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से यहाँ बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। देखिए, फिलहाल ये इंडिविजुअलिज्म खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा खत्म होता तो आप किसी एक प्लेयर को, मैं इज अ ग्रेट प्लेयर, मैं कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन हिस्ट्री में मैं क्रिकेट सबसे पहले सुनना, जो हम छोटे होते थे तो मुझे याद है 1978 सीरीज जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैंने तब से कमेंट्री सुननी शुरू की, जो सीरियसली जो कहते हैं फॉलो करना शुरू किया। मुझे आज तक कभी समझ नहीं आता कि एक प्लेयर 3 साल 4 महीने या वॉट एवर जितने भी मंथ कोई सेंचुरी ना करे सर्वाइव किया हो, बिकॉज दैट्स द स्टार पावर जो आज हो रहा है। आप किसी को इतना लंबी रोप दे देंगे कि वो कोई बात नहीं 3 साल 4 साल, बिकॉज ही इज योर स्टार। बाहर क्या हो रहा है, अगर इफ यू रिमेम्बर, हमारे बहुत अच्छे थे वहां पर भी प्लेयर्स हैं सब जगह, लेकिन वहाँ इंडिविजुअल को बाहर बिठाना बहुत बहुत देर नहीं लगती। अगर जो रूट को अगर कप्तानी से हटाना था 1-2 सीरीज के असफलता के बाद, तो उनको ये शोर नहीं मचाया गया कि उन्होंने किसी के गाली गलौज किया, पहले एक कोच को बदलवा दिया, फिर उन्होंने बीसीसीआई को डोमिनेट किया, और उसके बाद भी उन्होंने चीफ कोच और बीसीसीआई प्रेसिडेंट को भी गाली दे दी और बोला कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है। तो जो आपने बोला, मैं आई कंप्लीटली एग्री कि ये जब तक स्टार पावर है ऐसा नहीं होगा, जब तक रोहित शर्मा, विराट कोहली ये सब है। मे बी इन द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि अब वक्त ऐसा आता जा रहा है जो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल स्टार्स शायद थोड़े से फेड आउट होंगे, फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि आपकी क्रिकेट इतनी बड़ी हो गई है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20, और T20 में सेकंड एडिशन भी लाने वाले हैं ये आईपीएल का। तो हो सकता है कि प्लेयर्स की इंजरीज जो ऑलरेडी बढ़ रही है, प्लेयर्स का वियर जो होना, वियर एंड टियर जो है ज्यादा बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे ऐसा हो। लेकिन बेसबॉल इंडिविजुअली इफ यू आस्क मी, इट्स ए गुड अप्रोच ऑन सर्टेन, ऑन अंडर सर्टेन कंडीशंस, ऑन सर्टेन ट्रैक्स। ये हर जगह पर ये अप्रोच आपकी ठीक नहीं हो सकती। लेट इंग्लैंड कम टू इंडिया राइट नाउ, इन्हीं विकेट्स पे मैं आपको कह रहा हूं ना, देन बेसबॉल खेल करके दिखाइए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा, बट आई एम सेइंग आई वांट टू सी दैट। क्या वो सक्सेसफुल होगा? क्या वो इंदौर, दिल्ली, इन पिचेस पे वो चलेगा? अगर चलेगा तो ठीक है, मे बी आई वुड चेंज माय ओपिनियन, बट आई डोंट थिंक जहां सो। तक अग्रेशन की बात है, और अग्रेशन का काफी जिक्र हम लोगों ने इस शो पे किया, तो एक क्लासिक एग्जांपल है, आपने खुद ही कहा था, वीरू सहवाग। वो जब आए, जब तक गांगुली ने उनको एज अ ओपनर प्रमोट नहीं किया था, वो एक अलग खिलाड़ी थे। जैसे ही उनको प्रमोट किया, बैक किया, तो he redefined the game, became a great name, great batsman, great entertainer, which is brilliant. But I want to go also back to Kapil Dev, because that's a very interesting name that you mentioned. और कपिल देव कहा करते थे कि ये बॉम्बे क्लब, जिसमें सुनील गावस्कर साहब और सब ये सारे वहां के प्लेयर्स थे, तो उनका कहना था कि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जिस प्लेयर ने 100 रन बनाए वो फ्रेश गार्ड क्यों लेगा, उसके माइंडसेट में ये क्यों आएगा कि चलो अब फिर से पारी की शुरुआत करते हैं। यहीं पे सहवाग जैसा खिलाड़ी होना चाहिए जो एक दिन में 200-250 रन मार सकता है, ये नहीं कि आप अपने लिए खेल रहे हैं। तो एक माइंडसेट का क्लैश है, और अब वही सुनील गावस्कर कह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट बेसबॉल इज। सो एक और अग्रेशन है, एक अलग अप्रोच है। ऑब्वियसली दे आर बोथ ग्रेट्स ऑफ द गेम, बट एट द सेम टाइम when Mr. Gavaskar is being so dismissive, what is the signal that it is sending? देखिए, अप्रोच आपका अरूप वैसा ही होगा जैसे आपने एक माइंडसेट होता है, जैसा आपका जो ग्रोइंग अप डेज या आपका जो प्लेइंग डेज थे उसमें आपने जो अप्रोच रखी होगी। फॉर मी आई थिंक इट्स लाइक ए ड्राइविंग, इवन इफ यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्राइवर्स, ठीक है, आई लव टू ड्राइव, लेकिन अब जब जा रहे हैं लंबे टूर पे जा रहे हैं, then what happens is after certain miles, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलने के बाद आप चाय पानी के लिए रुकते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दैट आप ड्राइविंग से घबरा रहे हो या कुछ नहीं, क्योंकि आप फ्रेश होना चाहते हो। आप वैसे ही गार्ड, आपका जो फ्रेश गार्ड लेते हैं, क्यों लेते हैं? इस एवरीबडी कांट बी वीरेंद्र सहवाग। फॉर मी ही वाज द बिगेस्ट गेम चेंजर एज फार एज टेस्ट फिक्चर्स आर कंसर्न फॉर इंडिया। एडम गिलक्रिस्ट एंड वीरेंद्र सहवाग, मुझे दो प्लेयर बहुत ही पसंद है फॉर डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि उन्होंने आपका चेंज कर दिया जो माइंडसेट था कि हम अब अप्रोच कैसे करेंगे गेम को। तो उसमें क्या था
वो वीरेंद्र सहवाग थे कि आप 196, 194 पे और 100 6 मारोगे और 200 पे पहुंच जाओगे, 6 मारोगे फिर 300 करोगे। ये बहुत कम प्लेयर होते हैं। अगर आप इसको कह दें कि थोड़े सटके हुए प्लेयर हैं, ग्रेट एंटरटेनर है, कोई भी वर्ड दीजिए, हर एक व्यक्ति देता है, बट वो गावस्कर नहीं हो सकते। लेकिन गावस्कर वॉज अनदर ग्रेट जिन्होंने ये बताया कि आप बिना हेलमेट के उस पेस बैटरी को कैसे खेल सकते हैं। आज खिला दीजिए ना किसी को अच्छे से, हमारे वाले पेस बॉलर्स को ही खिला दीजिए, कोई विदाउट हेलमेट नहीं खेलेगा। सो ये सब आपकी अपनी अप्रोच है, डिफरेंट है, लेकिन हाँ हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है। गावस्कर ने आपको स्टेबिलिटी दी, उस वर्ल्ड क्लास अटैक के अगेंस्ट आपने जाकर के जमाइका और बारबाडोस में आपने मैचेस को ड्रॉ करना सीखा। 422 रन चेज करते हुए आप ऑलमोस्ट जीतने पे पहुंच गए थे। तो वो एक डिफरेंट अप्रोच थी। कपिल ने आपको ये सिखाया कि बॉस अब जीतने के लिए खेलते हैं, लेट्स गेट अवे विद दिस ड्रॉ बिजनेस। आपको जीतने के लिए सिखाया। 183 रन करके भी आप मैच जीत करके निकाल लेते थे विवियन रिचर्ड्स के टाइम में। उसके बाद आए महेंद्र सिंह धोनी या फॉर दैट मैटर पहले गांगुली की बात करें, उन्होंने कहा कि देखिए मैं बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स के साथ इनको ग्रेट बनाऊंगा, उनको कॉन्फिडेंस दिया। वीरेंद्र सहवाग, मुझे याद है उससे पहले थोड़े दिन पहले मैं कोटला में मैच कर रहा था पंजाब अगेंस्ट दिल्ली। वीरेंद्र सहवाग कोई स्टार थोड़ी भी थे, कोई पूछ भी नहीं रहा था। सहवाग उन्होंने इनफैक्ट हरभजन खेल रहे थे, 2 छक्के भी उनको मारे उधर स्टेडियम में, जो अम्बेडकर स्टेडियम है। तो सडन लगा इसमें कुछ बात है। थोड़े दिन बाद आके उन्होंने सेंचुरी कर दी क्योंकि उनकी पीठ पर हाथ रखा गया। दिल्ली में उनका प्लेस श्योर नहीं था, उनका इंडियन टीम में श्योर हो गया। और यही वीरेंद्र सहवाग, अगर आपको 2005 के आसपास की बात बताऊं, जब ग्रेग चैपल आए थे, उनका कॉन्फिडेंस इतना शेक हो गया। आई रिमेम्बर उनको खेलते हुए नहीं समझ आता था, उनसे प्रैक्टिस के दौरान में वो इतने कैचेस उछाल रहे होते थे। मैंने वो भी कवर किया है। और कई बार ऑफ द रिकॉर्ड आकर बड़े लोगों को बहुत कुछ बोलते थे, चैपल अलग से बोलते थे, वो अलग से। तो चैपल के जाते वो फिर वर्ल्ड क्लास हो गए। तो ये देखिए, मैंने कहा 2 इंडिविजुअल की सोच है, 2 लोगों का एक अलग अप्रोच है जिसको बेसबॉल बना दिया गया है। लेकिन इस बेसबॉल को अभी टेस्ट होना कई जगह पर बाकी है। अभी आप कई जगह सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन आपकी ये सक्सेस अभी आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में नहीं ले गया। तो मैं इसको हाफ बेक सक्सेस बोलूंगा। लेट देम कम टू इंडिया, इन पिचेस पे टिपिकल खेलिए, देखिए कि क्या होगा। मे बी वी कैन ऑल्सो चेंज आवर ओपिनियन। ऐसा कुछ नहीं है कि हम Yes, बहुत बिल्कुल we will wrap it here. And like you were saying, that this is still a half-baked success, but it is Bazball is working miracles for England cricket, and good luck to them. But like we are all saying, let them come here under these conditions, like Australia came, and under the play on these raging turners, and then we'll see how successful Bazball cricket is. That is point one. The second point is, which is again a divergent view. It is coming from the great Ricky Ponting, a great Test player, who said that McCullum's approach is not to shy away or hide out from danger, but rather face it head on and beat it out. Test cricket is also in peril of disappearance, with people's interests turning to shorter formats like T20, the 100, and the T10 league. And like we are all saying, for the purists, the absolute delight still is Test cricket. And if Bazball can bring more eyeballs to Test cricket, then good luck with it. We'll leave it there. We'll keep a track on Bazball and see how it goes. The next test for England would be the Ashes, when they'd be taking on the Aussies at home in a 5-test series. That would be a wonderful time to again see how this whole gig goes. I thank my friend CS, and I thank all our viewers. I would also request you to please send your likes, dislikes, suggestions, anything, comments that you feel like to boost this show. And we'll be back again next week with another interesting topic. And always the point is to create and discuss something which is controversial, which is divergent, and which is not so simple to analyze. And that is why this show is called No Filter Cricket. Thank you for watching.